Hello students, in today's class we are going to start our new chapter, that is chemical equilibrium, which is of class 11. So start our JEE Mains previous year questions from the question number 1. Question कह रहा है the incorrect match in the following is, इनमें से कौन सा incorrect है ये बताना है। हमें चार ऑप्शन गिवन है। डेल्टा जी नॉट इज द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी log K. Okay, this is the relation between the standard Gibbs free energy and equilibrium constant. For the equilibrium, the value of delta G is equal to 0. At equilibrium, delta G is equal to 0. So delta G naught, that is standard Gibbs free energy, is equal to minus of 2.303 RT log of K. K is the equilibrium constant. Okay. Now, if the value of K, if the value of standard Gibbs free energy increases, that means the value of K is decreasing. Okay. So delta G naught is greater than 0. Okay, that means the value of K is less than 1. Okay, क्या ऐसा कोई ऑप्शन गिवन है अपने को? तो वो ऑप्शन कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये वाला सी ऑप्शन गिवन है, तो ये कैसा है? करेक्ट है। इनकरेक्ट तो नहीं है, हमें इनकरेक्ट बताना है। इफ डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो रही है इस बार? डेल्टा जी की वैल्यू मैंने लिखी है डिक्रीज। ओके, तो K की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। ओके, मींस डेल्टा G नॉट इज लेस देन 0, दैट मींस K इज ग्रेटर देन 0। ओके, और ग्रेटर देन 1, K is greater than 0 or greater than 1. So this the option number 1 is also correct. But at equilibrium, now if the value of K is 1, so delta G naught is equal to minus 2.303 RT log of K. अगर यहाँ K की वैल्यू कितनी रखी मैंने? 1, K की वैल्यू को रखा 1, तो log 1 कितना होता है? log 1 is equal to 0 and log 2 is equal to 0.3, log 3 is equal to 0.5, log 4 is equal to 0.6। ये वैल्यू याद है ना आपको? ठीक है, log 5 is equal to 0.7, log 6 is equal to 0.8 and log 7 is equal to 0.85 and log 8 is equal to 0.9 and log 9 is equal to 0.95 and log 10 is equal to 1। log 10 कितना होता है? log 10 is equal to 1। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब log 1 कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ से डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई ना। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बट इफ द डेल्टा जी नॉट इज लेस देन 0 मींस नेगेटिव की बात कर रहा है, तो k इज आल्सो लेस देन 1। क्या k 1 से कम होगा? नहीं, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। सो आवर राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in which one of the following equilibria Kp is not equal to Kc dash? तो हमें रिलेशन पता है Kp Kc का क्या रिलेशन होता है? Kp is equal to Kc r to the power delta Ng. Here r is the
gas constant, universal gas constant, T is the temperature, and delta Ng. Delta Ng is equal to number of moles of gaseous product, number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant. Okay, so number of moles of gaseous reactant for first reaction is A, यानी कि प्रोडक्ट के लिए कितना है 2. so for the A के लिए कितना आ जाएगा डेल्टा Ng, for A delta Ng is equal to number of moles of product 2 minus number of moles of reactant 1 plus 2, that is 3. Okay, so delta Ng for the reaction A is -1. तो यहाँ से Kp कितना आ जाएगा, Kp is equal to Kc R to the power delta Ng. delta Ng कितना आया यहाँ से -1. Okay, so Kp is नॉट इक्वल टू Kc. ठीक है, यहाँ से क्या पता चला आपने को, Kp इज नॉट इक्वल टू Kc. अगर K RT की पावर कितनी आ जाए 0 आ जाए तो कितना हो जाएगा, R to the power 0 is 1. सो Kp इज इक्वल टू Kc. तो देखिए ये कौन से, अब ऑप्शन नंबर बी लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या है. डेल्टा Ng कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के लिए, बी के लिए आ जाएगा डेल्टा Ng इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, यानी कि 1 मोल प्लस 1 मोल 2 मोल्स. ओके, 2 minus number of moles of gaseous reactant. gaseous reactant कितना है 2 minus 2. So delta Ng is equal to 0. Okay, now put the value of delta Ng. Kp is equal to Kc R to the power delta Ng. delta Ng is 0, so Kp is equal to Kc. और हमें उस रिएक्शन में क्वेश्चन में पूछा गया Kp is not equal to Kc. So this is true for the first A only. Okay, now check equation number C. इसमें देखेंगे तो क्या है, देखो नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट कितने हैं 2 और गैसेस रिएक्टेंट भी कितने हैं 2. तो यहाँ भी 0 आ जाएगा डेल्टा Ng. तो यहाँ से Kp is equal to Kc हो जाएगा और सेम D वाली के लिए हो जाएगा. यहाँ भी नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट कितने हैं 2 मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट एंड 2 मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट. सो डेल्टा Ng क्या आ जाएगा 0. इस केस में भी डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0 और इस केस में भी डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0. ओके, सो द राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन 2SO2 plus O2 gives 2SO3. Okay, now we have given delta H is equal to minus 57.2 kilojoule per mole. ओके, डेल्टा H नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन कैसी है एक्सोथर्मिक. इफ डेल्टा H इज पॉजिटिव देन द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. तो ठीक है, हमें डेल्टा H से क्या पता चल रहा है, रिएक्शन कैसी है एक्सोथर्मिक. ओके, एक्सोथर्मिक. एंड Kc गिवन है अपने को 1.7 into 10 to the power 16. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमें ये बताना है बस. ठीक है, the equilibrium constant decreases as the temperature increases. Okay, तो हम इसके लिए क्या देखेंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन के लिए, बेंट ऑफ इक्वेशन. बेंट ऑफ इक्वेशन क्या है, बेंट ऑफ इक्वेशन which is equal to ln K equilibrium is equal to minus of delta H, that is enthalpy, okay, upon RT plus delta S upon R. Here S is the entropy and R is the universal gas constant. K equilibrium, Keq is the equilibrium constant. Okay, this is our Bentov equations, and by this equation we will draw a graph between ln K equilibrium versus 1 upon T ग्राफ. ओके, इस इक्वेशन को देखकर हमें क्या पता चल रहा है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि लीनियर इक्वेशन है. तो लीनियर इक्वेशन में स्लोप कितना है, स्लोप इज, तो ड्रॉ करेंगे ग्राफ. स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, दैट इज ln K equilibrium
upon versus 1 upon t. Okay, now the slope is positive, so this is our slope. Okay, slope is equal to minus delta h upon r. Okay, if we place the value of delta h as negative, negative become positive, so the slope is positive for the exothermic reaction. For exothermic reaction. अब देखिए उसने क्या बोला है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। मैंने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो 1 अपॉन टी की वैल्यू आ जाएगी डिक्रीज। अगर 1 अपॉन टी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, और तो के इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, इंक्रीज। ओके, के इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, सॉरी के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो 1 अपॉन टी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो मैंने 1 अपॉन टी की वैल्यू को डिक्रीज किया तो के इक्विलिब्रियम भी क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, अगर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, और एडिशन ऑफ इनर्ट गैस करते हैं तो क्या हो जाता है, देयर इज नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, तो ये ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज द प्रेशर इंक्रीजेस। क्या इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट करता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन the equilibrium shift in the direction where the number of moles are lesser on increasing pressure। जैसे ही हमने प्रेशर, देखो प्रेशर इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, इक्विलिब्रियम shifts towards lesser number of gaseous moles, lesser number of moles। ओके, अब देखो इस रिएक्शन को देखो ध्यान से, 2SO2 plus O2 gives 2SO3। ओके, तो यहाँ मोल्स किधर जाना है, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 2 मोल्स, और रिएक्टेंट साइड में है 3 मोल्स। तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, जिधर लेसर नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये क्या बोल रहा है, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज द प्रेशर इंक्रीजेस, मींस ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन क्या है अपना, डी वाला, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लार्ज suggestive of reaction going to completion and so no catalyst is required। Okay, this process, the reaction takes place in the presence of B2O5 bandium pentaoxide as a catalyst, and this process is known as contact process for the manufacturing of sulfur trioxide। Okay, so our right answer is D, means incorrect पूछा था तो incorrect कौन सा है, D statement, because the catalyst is required and the name of the catalyst is bandium pentaoxide। Okay, next question, for the following reactions equilibrium constants are given। दो रिएक्शन गिवन है अपने को, क्या है, S plus O2 gives SO2। okay, then K1 is for the reaction is K1 is equal to 10 to the power 52, and for second reaction 2S plus 3O2 gives 2SO3 and K2 value is given, that is K2 is equal to 10 to the power 129, and the equilibrium constant for the reaction 2SO2, ये यहाँ पे 2 आएगा। okay, 2SO2 plus O2 gives 2SO3 gas। ओके, हमें ये रिएक्शन बनानी है और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है क्या होगा। तो इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते हैं, लेट के बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। ओके, अब फर्स्ट वाली रिएक्शन को देखो, अपने को क्या गिवन है, S plus O2 और SO2, और हमें चाहिए SO2, फर्स्ट इक्वेशन में SO2 गिवन है राइट हैंड साइड पे, और अपने को चाहिए जो मेन इक्वेशन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को क्या कर रहा हूं मैं, ये वाली इक्वेशन को मैं रिवर्स कर रहा हूं। तो SO2 इक्विलिब्रियम O2 प्लस
एस। ओके, मैंने रिवर्स किया इस इक्वेशन को, तो इसके लिए के डैश इज इक्वल टू, जब भी हम किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, रेसिप्रोकेटेड। ओके, सो द k dash is equal to 1 upon k1. Okay, now I am going to multiply this equation by 2 because I need the stoichiometric coefficient is 2, so I am going to multiply this equation by 2. Okay, अगर मैंने किसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या चेंज आता था, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ पावर में चला जाता था फैक्टर। ओके, तो यहाँ फैक्टर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, अब अपने पास दूसरी रिएक्शन क्या है, 2s प्लस 3O2 इक्विलिब्रियम 2SO3, इसके लिए क्या है, K2 है। ठीक है, अब मैंने इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर रहा हूं, तो क्या मिलेगा मेरे को, 3O2 मींस 2SO2। ओके, यहां से देखिए 2s से 2s कट जाएगा। ओके, और O2 से यहाँ आ जाएगा अपने पास O, इधर 3O2 थे, यहाँ 2O2 थे, तो क्या कितना बचेगा, O2 बचेगा। ओके, नाउ इधर की साइड क्या जाएगा, 2SO3। अगर हम किसी दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था, K, तो अब K इज इक्वल टू, अब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके लिखा है K को, इस वाली इक्वेशन को। ठीक है, तो इसका K क्या आ जाएगा, K1 इंटू K2। जब भी हम दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है,